हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 10, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो in the previous chapter we looked at life processes involved in the maintenance function in a living organism. So हमने पिछले लेक्चर में देखा था जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं हमारे इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस फंक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. So there we had started with a notion we all have that if we see something moving, so हम देखते हैं अगर कोई चीज़ मूविंग होती है so it is alive, वो जिंदा होती है. Some of these movement are in the fact the result of a growth. So ये these movement मतलब एक result of growth में हमें दिखती है. एज इन प्लांट्स में भी हमें ये दिखती है. और सीड जर्मिनेट्स, एक पहले सीड पहले जर्मिनेट होता है देन फिर ग्रो होता है. एंड वी सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर अ कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज, मतलब वो बड़ा होने लगता है. इट पुशेस सॉइल असाइड एंड बिकम आउट, और वो इतना ज़्यादा ग्रो मैच्योर हो जाता है, मतलब ग्रो हो जाता है कि उसके जो रूट्स होते हैं बाहर आ जाते हैं. सॉइल असाइड एंड कम आउट. बट if its growth were to be stopped, these movement will not happen. So अगर हम उसकी ग्रोथ रोकने की कोशिश करेंगे तो वो हम मूवमेंट नहीं रोक सकते हैं. some movement as in many plants, animals and plant, some plants are not connected with growth. So कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं इन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो हमारे कनेक्टेड नहीं होता हमारे विथ ग्रोथ से. मतलब a cat running, children playing on swings, buffalo chewing cud. These are not movement caused by growth. So इससे हमारा जो growth, मतलब आप बड़े नहीं होंगे, मतलब growth नहीं बढ़ेगी आपकी. Why do we assess such visible movement with life? A possible answer is that we think of a movement as a response to change in the environment of the organism. So हम ऐसा सोचते हैं मतलब कि मूवमेंट से एक रिस्पॉन्स होता है जिससे कि चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस. सो यहाँ पे जो कैट जो रन कर रही है क्योंकि उसने एक चूहा देख लिया. सो नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक of a movement as an attempt by a living organism to use changes in their environment to their advantage. So कि advantage लेने के लिए ये सब कर रहे हैं. Plant grow out into the sunshine. Children try to get pleasure and fun out of swinging. Buffalo chew cud to help break up tough food, so to able to digest it better. When bright light is focused on our eyes, when we touch a hot object, we detect the change and response to it with the movement in order to protect yourself. सो जब हम कुछ हॉट ऑब्जेक्ट छू लेते हैं तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं. वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू इट विद द मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, मतलब आप खुद को बचाने के लिए. इफ वी थिंक अ बिटर मोर अबाउट दिस, इट बिकम अपेरेंट दैट ऑल द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज केयरफुली कंट्रोल. सो जितने भी हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं वो काफ़ी केयरफुली कंट्रोल होता है. ईच kind of a change in the environment evokes an appropriate movement in response. When we want to talk about a class, friends in class, we whisper rather than shouting loudly. So हम अगर किसी से हमें बात करना हो क्लास में, सो हम विस्पर करते हैं, ऐसा नहीं कि चिल्लाने लगते हैं. सो ऐसा बताया गया यहाँ पर clearly. The movement to be made dependent on the event that is triggering it. Therefore, such control movement must be connected to recognition of various events in the environment, followed by the correct movement in response. In other words, living organism must use system providing control and coordination. So, living organism को मस्ट यूज़ करना चाहिए एक कुछ सिस्टम जिससे कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो सके. In keeping with the general principles of body organization in multicellular organism, specialized tissue are provided to are used to provide this control and coordination activity. So कुछ हमारे specialized tissue होते हैं
जिससे कि हमारा ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं. So our next topic is animal nervous system. In animals, such control and coordination are provided by the nervous and muscular tissue, which we have studied in class 9, जो हमने class 9 में पढ़ा था. Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. So ये काफ़ी हमारी dangerous situation बन जाता है. We need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? So हमें कैसे मालूम चलता है कि हमने hot object छुआ है? All information from our environment is detected by the specialized tips of some of the nerve cells. So ये हमारी एक nerve cell जिसमें हमारा ये nucleus है बीच में, then ये dendrite, that is axon जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे बीच में, and that is nerve ending जो last में, and that is cell body. These receptors are usually located in a sense organs such as the inner ear, the nose, the tongue, and so gustatory receptor will detect taste. So ये हमारे डिटेक्ट करते हैं, लाइक जैसे कि अगर हमें काफ़ी ज़्यादा हॉट हमने छू लिया तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं. सो हमें यहीं से मालूम चलता है. While olfactory receptor will detect smell. So हमारे gustatory receptor होते हैं और हमारे taste detect करते हैं, while olfactory receptor हमारे smell को detect करते हैं. This information acquired at the end of a dendrite tip of a nerve cell set off a chemical reaction that creates an electric impulse. So ये जो हमारा nerve ending के बाद जो डेंड्रिटिक टिप, मतलब ये डेंड्रिटिक टिप होता है आगे वाले का, जो अगला हमारा नर्व सेल होगा, सो उससे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है जिससे कि हम काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं. दिस इम्पल्स travels from a dendrite to the cell body and then along the axon to its nerve end, and at the end of the axon the electrical impulse sets off release of some of the chemicals. These chemicals cross the gap or the synapse and start similar electric impulse in a dendrite of the next neuron. So ऐसे ये जो डेंड्राइट होता है दूसरे नर्व एंडिंग में ऐसे सिग्नल्स भेजता है, ऐसे ऐसे करके भेजते रहते हैं जिससे कि जो हमारा सिग्नल्स हो जल्दी पास हो सके और काफ़ी ज़्यादा हम जल्दी से अपना हाथ हटा सकें. दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ nerve impulses travel in a body. A similar synapse finally allow delivery of such impulses from neurons to other cells, such as muscle cell or gland. It is thus no surprise that nerve tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons. तो इसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो हमने यहाँ देखा, जो डेंड्राइट, न्यूक्लियस, एक्सॉन, नर्व एंडिंग है, इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं. and is specialized for conducting information via electrical impulses. So ये हमारे information भेजते हैं via electrical impulses from one part of the body to another and identify the parts of the neuron where information is required. Second, though, through which information travel as an electrical impulse and where this impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission. So is there a difference in how sugar and food taste if our nose is blocked? If so, which might have been happening? Read and talk about the possible explanation of these differences. Do you come across a similar situation when you have a cold? So यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने. So हमारा अगला टॉपिक है what happens in a reflex action. So reflex is a word we use commonly when we talk about some sudden action in response to something in our environment. We say, I jumped out of the way. The bus reflexly, मतलब जो हम हाथ हटाते हैं तुरंत, मतलब जो हम अगर छू लिए कुछ हॉट तो, एंड इसी चलते हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि आई पुल्ड माई हैंड बैक ऐसे, or I pulled my hand from the flame reflexively, or I was so hungry my mouth started watering reflexively. What exactly do we mean? A common idea in such example is that
वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, सो हम वो काम कर देते हैं बिना सोचे, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी से हम एक्शन लेते हैं, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ अ रिएक्शन. Yet these are the situation where we are responding with some action to changes in our environment. How is control and coordination achieved in such a situation? So हम ये आगे देखेंगे. Let us consider this further. Take one of our example, touching a flame urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal. How do we respond to this? So one seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned. Therefore move our hand. So इस चलते हैं हम अपना हाथ हटा लेते हैं तुरंत. An important question then is, how long will it take to think us all this? So कितना समय लगता है? The answer depend on how we think. So ये आंसर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी सोचते हैं, मतलब कि हाँ मेरे को हाथ हटाना है ऐसे. If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of some impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स. हो काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन से पास होके जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. इफ दिस इज द केस, इट इज़ नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकली अरेंज न्यूरॉन्स. सो काफ़ी ज़्यादा हमारे न्यूरॉन्स फैले हुए हैं हमारे. इट सेट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ आवर स्कल. सो ये हमारे फॉरवर्ड एंड ऑफ स्कल में हमें मिलते हैं इन ब्रेन, and receive signals from all over the body which it think about before responding to. So ये कुछ करने से पहले ये सिग्नल्स भेज के हमें एक्शन बताता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है. Obviously, in order to receive the signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to a nerve coming from various parts of the body. So ये हमारे interconnected होगा, मतलब कि हमारे हैंड एंड मूवमेंट हमें जो करना है उन पार्ट से हमारे कनेक्टेड होगा, हमारे बॉडी पार्ट से. सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल टू मूव, नर्व मस्ट बी कैरी दिस सिग्नल बैक टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. सो इसके लिए हमारे जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी कनेक्टेड होने चाहिए, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारा जो भेजेगा न्यूरॉन उससे. इफ ऑल दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे दो इनफ टाइम फॉर अस टू बी गेट बर्न. अगर हमें ज़्यादा समय लग गया तो हमारा हाथ जल जाएगा. हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ अ बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ अ हीट, इफ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व दैट मूव मसल इन अ सिंपलर वे. सो यहाँ पे भी यही बताया कि जो हमारा जो नर्व सेल्स होंगे उन्हें कनेक्ट होना पड़ेगा हमारे जो मसल सेल्स होंगे, क्योंकि अगर हम अपना हाथ नहीं हिलाएंगे तो हमारा जो हाथ जल जाएगा चलते, और वो भी सिंपलर वे में. द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल ऑफ द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कॉम्प्लिकेटेड. किसी और काफ़ी जल्दी भी हो जाना चाहिए, वरना हमारा हाथ जलने की संभावना है. सच अ कनेक्शन इज कॉमनली नोन एज रिफ्लेक्स आर्क. और ऐसे हम एक्शन को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट nerve and the output nerve. The best place of the nerve would be at the point where the first meet of each other, जहाँ पे हमारा पहला कांटेक्ट होगा. लाइक हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ तो उसी मतलब जिस मिली सेकेंड में हमने छुआ उसी मिली सेकेंड में हम छोड़ देंगे, मतलब अपना हाथ हटा लेंगे, इतनी जल्दी हमारे सिग्नल्स पहुंच जाते हैं. नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन अ स्पाइनल कॉर्ड. सो हमें स्पाइनल कॉर्ड में इनका बंडल होता है ये नर्व सेल का. ऑन द वे टू द ब्रेन तक जब वो सिग्नल पहुंचाते हैं, रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म इन अ स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ. सो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं. ऑल्दो इन्फॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू द रीच द ब्रेन. सो फिर हमारे ब्रेन में हो जाता है सिग्नल्स. ऑफ कोर्स reflex arcs have involved in animal because the thinking process of a brain is not fast enough. So इतना fast enough नहीं है.
thinking part. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. So हमारे काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स के पास इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नहीं है जिससे कि वो थिंक कर पाए. सो इट इज़ quite likely that reflex arc have evolved as efficient way of functioning in the absence of a two thought processes. So ये काफ़ी important हो जाता है हमारा reflex arc in the absence of a thought process. However, even after complex neural networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick responses. So हमारा जो reflex arc होता है still काफ़ी efficient होता है क्योंकि उससे हम क्विक रिस्पॉन्सेस कर पाते हैं, अपने हाथ को बचा लेते हैं जलने से. सो आप ये देख सकते हैं पहले हमने रिसेप्ट किया जो भी हमें पेन मिला, फिर सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन भी है. सो यहाँ पे गया, फिर रिले न्यूरॉन है, ये इफेक्टर इन आर्म है, देन ये स्पाइनल कॉर्ड है, एंड देन ये मैसेज टू ब्रेन पहुँच गया हमारा. सो हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन. Is reflex action the only function of the spinal cord? Obviously not, since we know that we are thinking beings. So हम एक सोचने वाले human beings हम लोग. Spinal cord is made up of nerve which supply information to think about. So spinal cord से हमारे जो thinking part होती है उनके bundles होते हैं, nerve bundles होते हैं हमारे. Thinking involves more complex mechanism and neural connections भी होते हैं. These are concentrated in the brain, और ये हमारे concentrated होते हैं हमारे brain में, which is the main coordinating center of the body. So हमारा जो main coordinating center of the body हमारा brain होता है. The brain and spinal cord constitute the central nervous system, which is also known as CNS. So ये हमारा CNS का part होता है. They receive information from all parts of the body to and integrate it. So ये हर जगह हमारे हर पार्ट ऑफ बॉडी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड फिर उसको इंटीग्रेट करके फिर वो कोई ना कोई एक्शन लेते हैं. वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन. राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन. वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शंस होते हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकें, एंड इनवॉलेंट्री एक्शन वो एक्शंस होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते. लाइक जो हमारा हार्ट बीट है उसे हम रोक नहीं सकते हैं, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन, विच आर बेस्ड ऑन द डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू द मसल. सो जो हमारे जो मैसेज आया है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आया है स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, उस मैसेज को फिर से भेजना पड़ेगा मसल्स के पास, क्योंकि फिर रिएक्ट भी करना है हमें. दिस इज द सेकेंड वे इन विच नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल. सो ऐसे ही हमारे नर्वस सिस्टम्स कम्युनिकेट करते हैं मसल के साथ. द कम्युनिकेशन बिटवीन द CNS एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स arising from the brain and the spinal nerves arising from a spinal cord. So ये हमारे peripheral nervous systems होते हैं. इसमें हमारे cranial nerves होते हैं जो हमारे निकलते हैं from brain and spinal cord arising from the spinal cord. So ये हमारे spinal cord में भी होते हैं. The brain thus allows to think and take action based on the thinking. So हमारा brain action लेता है जो भी हमने सोचा है, मतलब जो भी हमारे electrical signals आए हैं from different parts of the body. As you will expect, this accomplished through a component design with a different parts of the body, parts of the brain. Brain responsible for integrating different inputs and output. The brain has three major parts of the region, namely the forebrain, midbrain and the hindbrain. So हमारे brain के भी तीन parts होते हैं. First is forebrain, second is midbrain, third is hindbrain. So देखते हैं. The forebrain is the main thinking part of the brain. So जो हमारा forebrain होता है वो main thinking part होता है. It has region which receive sensory impulse from various receptor. So ये receive करता है sensory impulse, मतलब from various receptor, मतलब हर जगह से रिसेप्ट, मतलब electrical signals रिसेप्ट करता है. Separate areas of the forebrains are specialized for hearing.
स्मेल, साइट एंड सो ऑन। सो स्पेशलाइज होता है लाइक हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट एंड सो ऑन। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर देयर इज अ sensory information is interpreted by putting it together with the information from other receptor as well as with the information that is already stored in the brain। और उससे भी हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारा पहले से पढ़ा हुआ है एंड जो नया इंफॉर्मेशन आया उससे भी कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है, मतलब जैसा भी सही लगता है ब्रेन को। मतलब बेस्ड ऑन all this, a decision is made about how to respond, and the information is passed on the motor areas where control movement of voluntary muscle, for example leg muscle and so ऐसे हमारा जो ब्रेन एक्शन लेता है लाइक कौन सा हमें हाथ हटाना है, लाइक हमने अगर छू लिया तो ऐसे पहले से ही इंफॉर्मेशन पड़ा होता है। उस समय जो इंफॉर्मेशन आता है ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड टू थ्रू ब्रेन के पास, सो उसको मालूम चलता है कि अच्छा यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है, देन यहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड करना होगा। सो वो उसी तरह फिर रिस्पॉन्ड करता है। However, certain sensations are distinct from seeing, hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? The sensation of feeling full is because of a center of association with hunger, which is in a separate part of our forebrain. So जो हमें लगता है कि हमारा पेट भर गया है, सो ये भी एक पार्ट ऑफ अ फोर ब्रेन का ही एक पार्ट होता है कि हमारा जो हंगर का मतलब हमारा पेट भर गया है ऐसा बताने की कोशिश करता है हमारा ब्रेन, फोर ब्रेन। सो हम आगे देखते हैं। सो हम यहाँ पे हमारा ह्यूमन ब्रेन का ये फर्स्ट आ गया, हमारा फोर ब्रेन है, दैट इज सेरिब्रम। ये क्रेनियम सेल स्कल होता है हमारा, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है दैट इज मिड ब्रेन। सो ये हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइंड ब्रेन होता है हमारा। हाइंड ब्रेन में हमारा पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम होता है एंड दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। Study the label diagram of the human brain. We have seen that the different parts of have different functions. So हमने देखा भी कि different parts हमारे different function होते हैं उनके। Can we find out the function of each part? So हम देखेंगे different specific function हम आगे। Let us look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. सो हम देखेंगे अब रिफ्लेक्स के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। आर माउथ वाटर व्हेन वी सी फूड एज वी लाइक विदाउट और मीनिंग टू, लाइक हमारे मुंह में पानी आ जाता है अगर खाना हम देख लेते तो। आर हार्ट बीट विदाउट और थिंकिंग अबाउट इट, सो हमारा दिल धड़कता है। सो ये एक काइंड ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन होता है। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन ईजिली बाय थिंकिंग अबाउट दैम और इवन इफ वी वांट टू डू सो, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। दैट आर इनवॉलंटरी एक्शन। डू वी थिंक, डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ पीपल। सो जो हमारे आँख का जो पीपल होता है मतलब वो छोटा हो जाता है, लाइक जब हम डार्क से लाइट में आते हैं, लाइक और हम लाइट से मतलब धूप से घर में आएंगे तो हमारा प्यूपल बहुत बड़ा हो जाता है, देन फिर घर में आएंगे तो डार्क में तो छोटा हो जाता है, चलते हमें कुछ दिखता नहीं है। एंड द थॉट ऑफ अ एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। सो इस पर हमारी कोई कंट्रोल नहीं होती है। मैनी ऑफ दिस इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन सो एंड हाइंड ब्रेन। सो ये हमारी कंट्रोल की जाती है बाय मिड ब्रेन and the hind brain. All this involuntary action including blood pressure, salivalization and vomiting are controlled by the medulla in the hind brain. So ये कंट्रोल की जाती है by the जो मेडुला में होता मेडुला है हमारा hind brain में। Thinking about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil, so these are possible due to the part of a hind brain that is called cerebellum की वजह से ये हमारा पॉसिबल हो पाता है, जिससे कि हमारा जो पोस्चर होता है उस चलते
उसको सही रखता है ये हमारा सेरिबेलम. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन ऑफ द वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. सो इसे ये हमारा एक काइंड ऑफ पोस्चर सही करता है बॉडी का हमारा, एंड बैलेंस प्रोवाइड करता है बॉडी के लिए. इमेजिन व्हाट वुड हैपन if each of these even failed to take place if we were not thinking about it. So इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता अगर ये सब नहीं होता तो हमारे ब्रेन में. Then next topic is how are these tissue protected. So a delicate organ like the brain, which is so important for a variety of activities, need to be carefully protected. For this, the body is designed so that the brain sits inside a bony box. So ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत एक बॉक्स में ऐसे फिट रहता है. Inside a box, the brain is contained in a fluid-filled balloon which provides further shock. So इससे हमारा जो शॉक हमें मिलता है अगर हम कहीं गिर गए, so उतना ज़्यादा चोट नहीं लगेगा. If you run your hand down the middle of your back, you feel a hard bumpy structure. So यहाँ पे अगर पीछे आप टच करेंगे दैट आपको एक बम्पी सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. दिस इज अ वर्टिकल कॉलम और द बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. और ये हमारा एक काइंड ऑफ बैकबोन होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी. हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन. सो यहाँ पे हम देखेंगे. सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द नर्वस टिश्यू. अभी तक हमने बात किया नर्वस टिश्यू की एंड हाउ इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन सेंड इज अराउंड द बॉडी. सो कैसे ये इंफॉर्मेशन भेजता है बॉडी के पास, मतलब ब्रेन के पास. प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट डिसीजन टू द मसल फॉर एक्शन. सो एक्शन लेने के लिए भेज देता है. इन अदर वर्ड, when the action or a movement is to be performed, muscle tissue will do the final job. How do animal muscle move? So हम यहाँ जानेंगे मसल सेल कैसे मूव करता है. When a nerve impulse reaches the muscle fibers must move. How does a muscle cell move? The simplest notion of a movement at a cellular level is the muscle cell will move by changing their shape so that they shorten. So the next question is how do the muscle cells change their shape. So यहाँ पे हम जानेंगे कि muscle cells अपने shape कैसे change कर लेता है. The answer must lie in the chemistry of the cellular component. So ये हमारे chemistry of cellular component पे depend करता है. Muscle cell have special proteins that change their both the shape and their arrangement. So इससे हमारा shape and arrangement of a cell change हो जाता है. In response to nervous electrical impulse, when this happens, new arrangement of these proteins give the muscle cell a shorter form. So इससे हमारा जो muscle cell की मतलब वो shape change हो जाता है और छोटा हो जाता है. Remember when we talk about the muscle cell tissue in chapter class 9, there were different kinds of muscles such as voluntary muscle and involuntary muscle. So दो तरह के मसल होते हैं हमारे, एक voluntary and एक involuntary. Based on what we have discussed so far, what do you think about the differences between these would be? So देखेंगे. So फिर हमारा अगला टॉपिक है that is coordination in plants. So animals have nervous systems for controlling and coordinating the activities of body. So हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम होता है जिससे कंट्रोल कर सकें और कोऑर्डिनेट कर सकें अपने एक्टिविटीज़ अपनी बॉडीज़ की. बट प्लांट्स के पास नाइदर और नर्वस सिस्टम और मसल्स होते हैं हमारे प्लांट्स के पास. सो हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ छुई मुई, द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप. सो जब हम टच करते हैं हम लीव्स ऑफ छुई मुई जो एक काइंड ऑफ सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट होता है, सो उस समय वो अपने आप को फोल्ड अप कर लेता है एंड ड्रूप कर लेता है. व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट गोज डाउन, द स्टेम कम्स अप इन द एयर. व्हाट हैपन्स फर्स्टली, द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच. सो सबसे पहले जो लीव्स होती हैं सेंसिटिव प्लांट की, सबसे पहले वो क्विकली रिस्पॉन्स करती हैं ड्यू टू टच. सो हम आगे देखते हैं.
So there is no growth involved in the movement. On the other hand, the directional movement of the seedling is caused by the growth. जो seedling के cause होगा is due to the growth. If it is prevented from growing, it will not show any movement. So plant show two different types of movement. One dependent on growth. So एक हमारा depend करेगा growth पे, and another independent of growth, और दूसरा वाला हमारा independent होगा growth के. So फिर हमारा अगला टॉपिक है immediate response to stimulus. So let us think about the first kind of movement, such as the that of sensitive plants. So since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch. So उस केस में जब हमारा ग्रोथ नहीं होगा इन्वॉल्व, so उस केस में जो हमारे प्लांट हो गए एक्चुअली मूव करेंगे अपने इन रिस्पॉन्स टू टच. बट देर इज नो नर्वस टिश्यू nor any muscle tissue. How does plant detect the touch, and how does the plant move in response? Then if we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of so हम जिस पार्ट को टच करते हैं हम प्लांट के, ऐसा नहीं होता कि वही पार्ट हमारा प्लांट मूव करेगा और डिफरेंट पार्ट हमारे मूव करते हैं प्लांट्स, ऐसा बता रहे हैं. सो इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड दैट इज़ कम्युनिकेटेड. सो वो कम्युनिकेट करते हैं अपने ही मतलब केमिकली वो कम्युनिकेट करते हैं कि डैट हमें किसने हुआ है, सो डैट वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं. फिर द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो specialized tissue in plant for conduction of information. So हमारे जो प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स होते हैं जिससे वो कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. बट उन जो जैसे हमारे एनिमल्स में होते हैं ना स्पेशलाइज्ड टिश्यू, वैसे हमारे प्लांट्स में नहीं होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए. देन फाइनली अगेन इन एनिमल सम cell must change shape in order for movement to happen. Instead of specialized proteins found in animals muscle cells, plant cells change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling, shrinking and therefore changing in shape. So जो हमारे एनिमल सेल में हम देखते हैं कि उस वहाँ पे हमारा सम सेल मस्ट चेंज, वहाँ पे शेप चेंज हो जाता है इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट और टू हैपन, जिससे कि हमारा मूवमेंट हो सके इन एनिमल सेल. बट हमारे जो इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल, और हमें वहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हमें मिलती हैं हमारे इन एनिमल मसल सेल. बट ऐसा नहीं होता हमारा इन प्लांट सेल में. ये अपनी शेप चेंज करती हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम. सो पानी की कमी कर लेती है तो देन श्रिंक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, एंड स्वेल हो जाती हैं तो फूल जाती हैं, पानी की मात्रा बढ़ा लेती हैं. सो हमारा अगला टॉपिक है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. सो सम प्लांट्स लाइक प्लांट ट्री क्लाइंब अप द अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन और टेंडल्स. सो कुछ हम प्लांट देखते हैं लाइक पी प्लांट, और दूसरे प्लांट पे चढ़ जाती हैं, टेंड्रिल्स उनमें होते हैं, मतलब होने लगते हैं. दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच. और ये जो टेंड्रिल्स होते हैं जो फॉर्म होने लगते हैं इन पी प्लांट, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टू टच. व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सपोर्ट with any support, the part of tendril in contact with object does not grow as rapidly as fast of the tendril away from the object. So यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो पार्ट हमारा टेंड्रिल का इन कांटेक्ट विद कोई किसी ऑब्जेक्ट से होगा तो वो ज़्यादा तेज़ से ग्रो नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू जो पार्ट हमारा टेंड्रिल का दूर है हमारा ऑब्जेक्ट से, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा. दिस कॉजेज टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट. वो अपने आप को मतलब सर्कल बना लेती हैं, मतलब अपने आप को दूर ले जाना चाहती हैं ऑब्जेक्ट से. ऐसा मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो जो हमारे प्लांट्स होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे स्टिमुलाई काफ़ी स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करके. बिकॉज दिस ग्रोथ डायरेक्शन अपीयर्स एज द प्लांट इज मूविंग. लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे इसके. सो यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं.
environmental triggers such as light or gravity will change the direction that plant grow in. So जो environmental triggers जैसे होते हैं हमारे light और gravity, वो change करते हैं हमारे direction जिसमें हमारा plant grow होगा. These direction or tropic movement can either be towards the stimulus or away from it. So ये stimulus की तरफ भी हो सकता है और stimulus की मतलब opposite में भी हो सकता है. So in two different kinds of phototropic movement, shoot respond by bending towards light while root responds to bending away from it. How does it help? So जो हमारे दो तरह के फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, एक शूट में जहाँ पे हमारा बेंडिंग मतलब उस लाइट की तरफ मुड़ जाएगा, एंड वाइल रूट रिस्पॉन्ड टू बेंडिंग मतलब उससे दूर चला जाएगा हमारे लाइट, जैसे लाइट आ रही है. सो प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल. सो प्लांट हमारे ट्रॉपिज्म शो करते हैं रिस्पॉन्स टू दूसरे स्टिमुलाई के लिए भी. द रूट ऑफ द प्लांट ऑल्सो ग्रो डाउनवर्ड्स वाइल द शूट यूजली ग्रो अपवर्ड अवे फ्रॉम द अर्थ. ये हम जानते ही हैं. द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट रिस्पेक्टिवली in response to the pull of the earth or gravity is obviously geotropism. इसे हम geotropism कहते हैं क्योंकि जो upward and downward growth होती है हमारी जो shoot and root में, वो response respectively in response to जो हमारा pull लग रहा है by the earth gravity, उसे हम geotropism कहेंगे. If hydro means water and chemical refers to chemicals, what would happen? Hydrotropism and chemotropism mean. Can we think of an example of these kinds of directional growth movement? One example of chemotropism is the growth of pollen tubes towards ovules. So हमारा जो chemotropism का example होगा, that would be growth of pollen tube towards ovules. About which we learn more when we examine the reproductive process of living organism, जो हम आगे के chapters में पढ़ेंगे. Let us now think once again think about how information is communicated in the body of multicellular organism. हम देखेंगे कैसे information communicate की जाती है in multicellular organism में. Then the movement of sensitive plants in response to touch is very quick. काफ़ी तेज होता है, जैसे हमने छुआ वैसे sensitive plant में कोई ना कोई अपना response दिखाती हैं और movement दिखाती हैं ऐसा. So the movement of sunflower in response to day or night on the other hand is quite slow. और जो हमारा movement होता है in sunflower काफ़ी slow होता है day और night में मतलब. So growth related movement of plant will even slower. उसमें हमारे जो growth related movement होगी हमें plant की वो काफ़ी slow होगी. लगता है हमें दिखता नहीं कि plant कैसे धीरे धीरे कितना बड़ा हो गया, हमें समझ में नहीं आता मतलब, बट वो बढ़ते जाता है धीरे 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 धीरे, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है. इवन इन एनिमल बॉडी देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ. सो हमारे अंदर भी काफ़ी कंट्रोल डायरेक्शन होते हैं जिससे कि हमारा ग्रोथ बढ़ते रहता है. और आर्म्स एंड फिंगर ग्रो इन अ सर्टन डायरेक्शन नॉट हैफाजली. सो हमने देखा हमारे आर्म्स और फिंगर्स एक डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो. So control movement can either be slow or fast. If response to stimuli to be made, information must be happen very quickly. उस समय हमारे जो information transfer होगा काफ़ी quickly होना चाहिए, जिससे कि हम अपना कुछ भी हमने किसी hot चीज़ को छू लिया तो हमारा response तेज होना चाहिए, जिससे कि अगर हमने हाथ नहीं हटाया अपना, so that कि हमारा हाथ जल जाएगा वरना थोड़ी देर और रुके तो ऐसा. For this medium or transmission must be able to move rapidly, जिससे कि जल्दी move कर सकें. So हम यहाँ देखेंगे electrical impulse are an excellent means for this, but there are limitation of this. electrical impulse के भी काफ़ी सारे हमारे limitations होती हैं. Firstly, they will reach only those cells those are connected nervous tissue, not each and every cell in the animal body. So ऐसा नहीं है कि सारे हमारे सेल तक पहुंच जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है, इसके कुछ लिमिटेशन भी है. सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन द सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक अप सम टाइम टू रीसेट इट मैकेनिज्म बिफोर इट जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स. इन अदर वर्ड्स, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट electrical impulse. It does no wonder
The most multicellular organisms use another means of communication between same, namely chemical communication. So ऐसा होता है कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती हैं, बट ऐसा नहीं होगी सारे सेल्स तक हमारे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच सके. सो और हमें तेज़ी से रिस्पॉन्स भी करना है ऐसा. सो यहाँ यही बताया, इन अदर वर्ड सेल्स कैन नॉट कंटिन्यू क्रिएट, मतलब तुरंत ऐसा नहीं बना सकती इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, क्रिएट एंड ट्रांसमिट नहीं कर सकती. दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज दूसरे मीन्स ऑफ मतलब कम्युनिकेशन यूज़ करती है हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. If instead of generating an impulse, electrical impulse stimulated release a chemical compound, this compound would diffuse all around the original cell. If another cell around have the meaning of detect this compound using special molecules on the surface, then they would be able to recognize information and transport, जिससे कि वो हमारे जो information होगी वो आगे भेज सकें और ट्रांसमिट कर सकें. This will be slower of course and can be potentially reach all the, जिससे कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके. regardless of nervous connection it can be done steadily and persistently, मतलब लगातार हम हमारा बॉडी मतलब कम्युनिकेशन कर सकता है टू डिफरेंट और इंफॉर्मेशन भेज सकता है ऐसा. These compound or hormones are used by multicellular organisms for control and coordination. So a great deal of diversity, as we would expect. Different plant hormones help to coordinate development and response to environment. They are synthesized at a place away from the where they act and simply diffuse to the area of action. So एक काइंड ऑफ हमारे हार्मोन्स होते हैं जो यूज़ करते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे बनी रहे हमारी बॉडी में, जिससे कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सके इसी चलते. और ये हमारे प्लांट्स में भी होते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. वी हैव वर्क विथ अर्लियर व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन. सो एक प्लांट हार्मोन होता है सिंथेसाइज एट द शूट टिप्स. ये शूट टिप्स पे होता है. हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर. सो ये हेल्प करता है जिससे कि हमारा जो प्लांट का सेल होता है और अच्छे से ज़्यादा ग्रो करे. When the light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot. So जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज़ कर जाता है टू द शेडी साइड ऑफ द, मतलब जहाँ पे अंधेरा है काइंड ऑफ. This concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from the light, मतलब लाइट से दूर. Thus the plant appear to bend towards light. उस समय हमारा फिर प्लांट हमारे लाइट की तरफ मूव होने लगता है. Another example of plant hormone are गिबरेलिन, which like oxygen helps in the growth of the stem. गिबरेलिन हमारा हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम. साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन. जो साइटोकिनिन्स होते हैं हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. एंड इट इज़ नेचुरल देन दे आर प्रेजेंट इन अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन कराते हैं हमारे एट ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन पे, सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग ग्रोथ. सो ये काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्लांट हार्मोन्स के और ये हेल्प करते हैं प्रोमोटिंग ग्रोथ. बट ऑल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग, मतलब ऐसा भी कोई हार्मोन होना चाहिए जिससे कि हमारा जब स्टॉप ग्रोइंग मतलब में ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए, ऐसा ग्रोथ रुक जाए. एब्सिसिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ. इट इफेक्ट इंक्लूडिंग विटलिंग ऑफ लीफ. सो इससे हमारा जो ग्रोथ होता है रुक जाता है इस वाले हार्मोन से. सो हम आगे देखते हैं. देन हमारा अगला टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स. सो हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स. हम ये देखेंगे कैसे हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो केमिकल हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कैसे करते हैं. What do some animals, for instance squirrel, experience when they are in scary situation? जो हमारी स्क्वेरल होती हैं वो एक्सपीरियंस करती है कभी कभी स्केरी सिचुएशन. तो उस समय क्या करती हैं देखते हैं.
देयर बॉडीज हैव टू बी प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे. सो उनकी बॉडी प्रिपेयर रहती है आइदर फॉर फाइटिंग और रनिंग अवे. बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन अ कंट्रोल वे. और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, उसमें काफ़ी सारा हमारा एनर्जी भी लगता है इन अ कंट्रोल वे. मेनी डिफरेंट टिश्यूज विल बी यूज इन द एक्टिविटी इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दिस एक्शन. और काफ़ी सारी हमारी डिफरेंट टिश्यूज होती हैं, उसमें यूज़ होती हैं इन अ इंटीग्रेटेड मैनर. However, the two alternate activity, fighting or running, are also quite different. So here is a situation in which some common preparation can be usually made in the body. These preparations should ideally make it easier to do the activities in the near future. How would they achieve? So हम आगे देखेंगे कैसे ये achieve कर पाते हैं अपनी, और ये activities कैसे कर पाते हैं अब देखेंगे. If the body design of the in the squirrel relied only on electrical impulse via nerve cells, the range of tissues instructed to prepare for coming activities would be limited. उस समय अगर हमारा इनकी बॉडी डिजाइन से मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही आ रहे हो थ्रू नर्व सेल, सो जो रेंज ऑफ टिश्यू होगा इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी जो आ रही है हमारी तरफ, मतलब बाधा जो आ रही है उसमें काफ़ी हम चूक जाएंगे, मतलब कोई ना कोई हमको नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे को पूरी नहीं मिलेगी ऐसा. ऑन द अदर हैंड अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट, इट वुड रीच ऑल द सेल ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंज ऑफ चेंजेस नीडेड. अगर हमारे पास और केमिकल सिग्नल्स होंगे तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी और वो हम सही समय पर मतलब स्क्वेरल वहाँ से भाग सकती है और लड़ भी सकती है ऐसा. दिस हैज़ टू बी डन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनलिन ग्लैंड. सो ये हमारे एनिमल्स में सिक्रेट होता है और हमारे में भी एक हार्मोन होता है दैट इज एड्रेनलाइन. सो ये सिक्रेट होता है जिससे सिक्रेट होता है हमारे एड्रेनलाइन ग्लैंड से. देन adrenaline is secreted directly into the blood and carried out to different parts of the body. So ये हमारा डायरेक्टली ब्लड में मतलब सिक्रीट होता है और ये कैरिड आउट होता है बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो द टारगेट ऑर्गन्स ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यू इन विच इन एक्ट इंक्लूड द, इसमें हार्ट भी हमारा इंक्लूडेड होता है. एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल. इससे कि हमारा जो हार्ट बीट होता है वो तेज हो जाता है और रिज़ल्ट उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है और वो ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारा हार्ट. द ब्लड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द स्किन रिड्यूस टू ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन मसल अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स. सो दिस डाइवर्ट द ब्लड टू अ स्केलेटल, जिससे कि हमारा जो ब्लड होता है डाइवर्ट हो जाता है टूवर्ड skeletal muscle की तरह. The breathing also increases because of the contraction of diaphragm and the rib muscle. हमारा जो breathing rate भी बढ़ जाता है due to the contraction of diaphragm और rib cells के वजह से. All this response together enable the animal body to ready to deal with the situation. Such animal hormones are the part of endocrine system which constitute a second way of control and coordination. So ये तरह से हम हमारी जो एनिमल की बॉडी होती है वो डील करती है विद सच सिचुएशन. और ये काइंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं हमारे, और ये काइंड ऑफ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी. देन हम यहाँ से पढ़ते हैं रिमेंबर दैट प्लांट हैव हार्मोन दैट कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ. सो हमने पढ़ा था कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं इन प्लांट्स वो कंट्रोल करते हैं अपने डायरेक्शनल ग्रोथ को. What function do animal hormone perform on face of it? We can not imagine their role in directional growth. So हम imagine नहीं कर सकते हैं ऐसा कि in directional growth में we have never seen an animal growing more on one direction or the other depending on the light or gravity. हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं मतलब एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं और डिपेंड कर रहे हैं हमारे लाइट और ग्रेविटी पे. बट इफ वी थिंक अबाउट इट अ बिट मोर इट वुड बी एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडी ग्रोथ हैपन्स इन
केयरफुली कंट्रोल प्लेसेस। सो हमारे अगर हम और अच्छे से देखेंगे हमें मालूम चलेगा कि जो हमारे ग्रोथ होता है काफ़ी केयरफुली एंड कंट्रोल प्लेसेस पे ही होता है। प्लांट वी ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी फॉर एग्जांपल, बट वी नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेस। तो हमने बट प्लांट्स में हमारी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस पे होती हैं, मतलब ग्रो होती हैं, बट ऐसा हमारे यहाँ हमारी बॉडी में नहीं होता कि हमारे फेसेस फिंगर्स में, ऐसा नहीं होता है। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। सो जो डिज़ाइन होती है हमारी बॉडी का वो काफ़ी केयरफुली मेंटेन रहती है इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ, मतलब जब हम बड़े होते हैं। सो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। लेट अस एग्जामिन सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। सो हम यहाँ से देखेंगे कैसे हमारे हार्मोन्स हेल्प करते हैं इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। वी हैव all seen salt packet say iodized or enriched with iodine. Why is it important for us to have iodized salt in our diet? So iodine is necessary for thyroid gland to make thyroxine hormone. So जो हमारा iodine होता है वो काफ़ी necessary होता है for the thyroid gland to make thyroxine hormone, वरना हमारे को गोइटर जैसा बीमारी हो जाएगा। So thyroxine regulate carbohydrate, protein and fat metabolism in body so as to provide best balance for growth. So जो हमारा thyroxine होता है तो carbohydrate, protein and fat metabolism provide करता है for the best balance for the growth. So iodine is essential for the synthesis of thyroxine. Also iodine काफ़ी important हो जाता है for the synthesis of this thyroxine. In case iodine is deficient in our food diet, there is a possibility we might suffer from goiter. So अगर हमारे खाने में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी जिससे हमें फिर गोइटर जैसी बीमारी झेलनी पड़ेगी। One of the symptoms in डिजीज़ इज़ swollen neck. सो हम देखते हैं कि ऐसे डिजीज़ में हमारा जो गला होता है सूज जाता है। Can you correlate this with position of thyroid gland in figure number 6.7. Sometimes we came across people who are either very short, that is dwarf, or extremely tall, that is giant. How you ever wondered how this happens? So आपने देखा होगा कुछ लोग काफ़ी छोटे होते हैं कुछ लोग काफ़ी बड़े होते हैं ऐसा। So growth hormone is one of the hormones secreted by the pituitary gland. So ये हमारे kind of growth hormones होते हैं जो secrete होते हैं from the pituitary gland. So as its name, growth hormone regulate growth and development of the body. If there is a deficiency of hormone in childhood, it will lead to dwarfism. So ये हमारे kind of growth hormones होते हैं और ये regulate करते हैं हमारे जो growth और development होगी हमारी body में। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हम छोटे रह जाएंगे, मतलब उतनी हाइट नहीं होगी हमारी जितनी होनी चाहिए ऐसा। You must have noticed many dramatic changes in appearance as well as our friends as you approach 10 to 12 years of age. आपने काफ़ी सारे changes देखे होंगे जब आप 10 to 12 year age के आप हुए होंगे। These changes are associated with puberty are because of secretion of testosterone in males and estrogen in females. Do you know anyone in your family, friends who are advised to by a doctor to take less sugar in diet because they are suffering from diabetes? आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप शुगर कम लिया कीजिए क्योंकि आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं ऐसा। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। उस समय वो लोग मतलब इंसुलिन की मतलब इंजेक्शन लेते हैं जिससे कि वो कंट्रोल कर सके अपना शुगर लेवल। दिस इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ पैनक्रियाज एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल। सो ये हार्मोन होता है, सिक्रीट करता है हमारा पैनक्रियाज और ये हेल्प करता है हमें in controlling the blood sugar level. If it's not secreted in proper amount, the sugar level in blood rises causing many harmful effects. अगर ये secrete नहीं हुआ अच्छे से तो जो हमारे शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा और उससे हमें काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो हम यहाँ देखते हैं, इफ़ इट इम्पॉर्टेंट that hormone should be secreted in a precise quantity
वी नीड ए मैकेनिज्म थ्रू विच इज डन। सो ये हमारे जो हार्मोन्स होते हैं हमें काफ़ी मतलब जितने अमाउंट हमें हमारी बॉडी को चाहिए उतना ही रिलीज़ होगा तो सही है, वरना ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो भी दिक्कत है ऐसा। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म से हमारा रेगुलेट एंड देखा चेक किया जाता है कि सही है, टाइमिंग सही है, अमाउंट सही है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइज दे आर डिटेक्टेड बाय द cells of pancreas will respond by producing more insulin as blood sugar level falls and insulin secretion is reduced। so हमारी बॉडी देखते रहती है कि हमारे बॉडी में अगर हमारा जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो दे आर डिटेक्टेड बाय हमारे सेल्स ऑफ पैनक्रियास से डिटेक्ट हो जाएगा, देन वो और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा ऐसा। सो यहाँ पे ये टेबल देख सकते हैं, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन है हमारा, ये हमारा एंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा होता है। सो और इसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। देन ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर ग्रोथ बॉडी ग्रोथ। देन इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल हमारा कहता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओवरीज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन एड्रेनलिन जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड से हमारा होता है रिलीजिंग हार्मोन, सो स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। सो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड राधे राधे एवरीवन, थैंक यू।